Basically, in last class we have read about different kinds of barrier. Now we have also read about steps of phagocytosis. Steps of phagocytosis at last, and we have also read detailed study of phagocytosis, where we have learned that first one is in first step there will be attachment, then there will be ingestion, then there will be intracellular killing of those microbes. Clear? In next we have learned that non-phagocytic cells means they will not perform any kind of phagocytosis. They are the cells which kill the other cells, other microbes. Clear? In next we have cytokine barrier. In cytokine barrier, basically it is a kind of barrier, and basically cytokine a kind of barrier where these are secreted from the virus infected cells. For example, these are some cells out of which these cells are infected by virus, and these infected virus means this is the virus which infect these cells. So these are the virus infected cell. These virus infected cell secrete some protein. That protein are known as interferons. We can use these cells, these protein as a barrier, or we can say as a prevention of other cells from getting infected. So this can protect the other cells which are non-infected. This protein, that is the interferon, which will protect the further cells next or other cells which are not infected for further infection. Is it clear? Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So in this, write the first point. Virus infected cell cells secrete proteins what we call them? Interferons. क्लियर? फंक्शन क्या होगा इसका? Which protects The non-infected cells. Non-infected cell from further infection, from further viral infection. Is it clear? Yes or no? And basically these, what I can say, these interferons acts as antiviral protein. What I have said, antiviral protein. Viral protein. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेगा इंटरफेरोन्स के बारे में. इंटरफेरोन्स के बारे में, these are antiviral protein. Antiviral protein made of 270 amino acid. क्लियर है? सेक्रेटेड बाय, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो लिखा चुका हूं. ठीक है? सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. क्लियर? एंड
stimulates, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट स्किप किया कि secreted by virus infected cell. Is it understood? Yes, sir. मतलब याद रहेगा ना कि ये जो एंटी इंटरफेरोन ने कौन सेक्रेट किया है? Virus infected cell. सारे बच्चे बोलिए। Virus infected cells. हाँ ना, वो मैं यहाँ पे मैंने बार बार एक ही पॉइंट लिखूँ ना, सही मतलब फिर वो खाली जगह लेता है। तो वही जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है दैट सीक्रेट इंटरफेरोन दैट विल स्टिमुलेट अदर सेल्स टू रिलीज टीआईपी। टीआईपी क्या होता है? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्लियर? स्टिमुलेट्स other we can say other cell or adjacent cell to produce translation inhibiting protein. ट्रांसलेशन क्या होता है? प्रोटीन के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इसको आप पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, आई थिंक सेंट्रल डोग्मा पढ़ चुके हैं आप लोग? हाँ Sir. अच्छा, वो किसमें था? उसमें था क्या? Molecular मॉलिक्यूलर। basis of molecular basis of it. हाँ, तो उसका आई थिंक, अच्छा उसका ना वहां से सवाल बनती है, जैसे क्या बोलते हैं, क्या सेंट्रल डोग्मा में क्या क्या होता है, सब पूछा जाता है। ट्रांसलेशन, DNA replication हो चुका है। अच्छा वो रिवर्स क्या होता है, वो सारा सवाल जो पूछा कि वो आपको आना चाहिए। हाँ इनहिबिटिंग that we call as translation inhibiting protein. Till now in there is there any doubt? no sir. No, sir. From this mechanism the interferon limits the virus infection, or the we can say infection of virus, which do not allow the virus to further cause any infection. These mechanism TIP, translation inhibiting protein, these protein will inhibit the virus to further cause any infection. Clear? हाँ sir. तो मैंने क्या बोला? By this mechanism interferon, सर हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के। आवाज सही आ रही मेरी? हाँ करेक्ट sir. करेक्ट Yes, sir. आवाज कट रही है? So नहीं कट रही है. नहीं कट रहा है। सर आ रहा है आपका आवाज। बेटा आप माइक को म्यूट कीजिए, फिर उसको फिर ऑन कीजिए, फिर तब से आवाज सही आएगी, मतलब अपना स्पीकर को। तो वरना वापस लीव करके ज्वाइन करने से भी सही होता है। Okay, Zinat? By this mechanism, interferon limits the infection of virus. Clear है? And these interferons are specific or non-specific? Anyone? So species specific है ना? हाँ, क्योंकि हर वायरस के लिए अपना अलग अलग आएगा और अपना अपना अलग अलग प्रोटीन सेक्रेट करेगा, हाँ कि ना? They are species specific. Is it clear? क्या मतलब है इसका? स्पेसीज स्पेसिफिक क्या मतलब है? आर्यन बताइए। मेरी आवाज किसी को आ रही है? हाँ सर। तो मैंने कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब दो।
सर हर स्पीसीज के लिए अलग एंटीवायरल प्रोटीन है। तो दे विल प्रोटेक्ट ओनली देयर स्पीसीज ना, जो उस वायरस के, जब मान लो कोई वायरस ए है, इससे जो आई प्रोटीन निकलेगा तो वो उसी के स्पीसीज को प्रोटेक्ट करेगा, हाँ कि ना? वो बी वाले के स्पीसीज के, बी वाले स्पीसीज वाले वायरस को वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है क्या? Yes. बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो इसमें मैं लिख देता हूं कि इसका मतलब ये है, दैट इज interferons produced by one, मैं आगे जाऊं? हाँ हाँ सर। by one species can protect only cells of same species against viral infection. Against viral infection. क्लियर है? Yes sir, clear. हाँ, and this interferon makes the cell resistant to viral infection by the synthesis of antiviral protein. मतलब उनके पास जो एंटीवायरल प्रोटीन होता है, इनके संग्रहण से वो वायरस के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंट होता है, मतलब उसको वायरस का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, एक टर्म मैंने आपको और भी लास्ट क्लास में बताया था कि दे कैन बी यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस। लिखाया था ये पॉइंट? लिखाया था सिर्फ बताया था? बस बताया था। Interferons used as, can be used as prophylaxis and treatment of viral infection. Treatment of viral infection. क्लियर? प्रोफाइलेक्सिस वापस बताओ एक बार। हाँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं भी बता रहा हूँ। प्रोफाइलेक्सिस बेसिकली क्या होता है? एक तरह का मतलब वो प्रोसेस है बेसिकली किसका? प्रिवेंशन का। और वी कैन से ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एनी डिजीज, इसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है। क्लियर है क्या? वो प्रिकॉशन या वो सारी चीज लेना, किसी डिजीज के अगेंस्ट एक्शन लेना टू प्रिवेंट दैट डिजीज, इसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइलेक्सिस। क्योंकि इंटरफेरोन है ना, इसको हम लोग अदर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं ताकि ये फर्दर वायरल इन्फेक्शन से अपने को बचा सके। क्लियर है? सब क्लियर है। इसी में एक नेक्स्ट होता है आपके पास अल्फा इंटरफेरोन। क्लियर है क्या? इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? इंटरफेरोन्स को INF, नीचे में S बोलते हैं, और एक होता है अल्फा वाला। क्लियर है क्या? इसको क्या बोलेंगे? अल्फा इंटरफेरोन। बेसिकली दिस इंटरफेरोन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। तो वी कैन से क्या, कैन वी से कि जो ट्यूमर सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने में काम आता है? यस और नो? यस सर। ट्यूमर दो टाइप का होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है और एक क्या होता है बताइए? तो क्या बोला आपने अभी? ट्यूमर दो टाइप का होता है ना, एक इनिशियल स्टेज वाला, दैट इज द और बिनाइन एक ट्यूमर, लेटेस्ट स्टेज वाला। ठीक है ना? तो ये जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। क्लियर? It activates immune system and destroy
ट्यूमर। तो इंटरफेरॉन से लिखा है ना आपने, INFS। हाँ, इसमें उसका नाम है अल्फा, यहाँ पे अल्फा वाला है, अल्फा इंटरफेरोन। एंड किसी अदर केसेस में क्या देखा गया है कि इट कैन आल्सो कॉज द रिग्रेशन ऑफ कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा क्या होता है मालूम है क्या? हाँ सर, क्या है? भेजा था। कुछ समझ में आया था? तो बस वो इतना पता चला कि डिस्ट्रॉय करता है लाइनिंग, वो सब, वो उसके बारे में पढ़ा। क्या मालूम चला? तो एग्जैक्टली नहीं पता चला, बस वो। अच्छा, एग्जैक्टली नहीं मालूम चला क्या? इसमें लिखा था कपोसी सार्कोमा। जैसे कैंसर वगैरह होती है ना, जैसे कैंसर वगैरह होती है तो उनके कॉज करने से जो लेसन वगैरह बनता है, दैट कॉजेज लेसन इन द सॉफ्ट टिश्यू। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है? हाँ, तो मैंने क्या बोला कि बेसिकली दीज आर द बेसिकली जो व्हेन द कैंसर कॉजेज सम लेसन इन द सॉफ्ट टिश्यू, तो यही कपोसी सार्कोमा के लिए होता है, which causes lesion to grow in the skin, lymph nodes, internal organs, mucous membrane which lines the mouth, or we can say nose, throats. It often affects people with immune deficiencies such as HIV. HIV में क्या होता है, एड्स में क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम ही तो खोखला हो जाता है, वही तो नहीं काम करता, या फिर वो बहुत पुअर तरीके से काम करता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे का चांसेस, कपोसी सार्कोमा का चांसेस ज्यादा रहता है। क्लियर है क्या? तो लेकिन ये अल्फा इंटरफेरेंस है ना, इनकी वजह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि इट कॉजेज दिस अल्फा इंटरफेरॉन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कॉजेज और कॉजिंग रिग्रेशन ऑफ कपोसी सार्कोमा। कपोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। यहां पे मैंने इन एड्स पेशेंट क्यों लिखा? इन एड्स पेशेंट। सर वो कैंसर में था ना, बट ये तो ठीक है, कैंसर में ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में काम तो आता है, लेकिन जो एड्स पेशेंट है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, तो उनके केस में कपोसी सार्कोमा का चांसेस ज्यादा रहता है, नजला का होना, ये सब नॉर्मल बीमारी, क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका वीक रहता है। आवाज आ रही है? हेलो? हाँ सर। तो मैंने क्या बोला, आई हैव टोल्ड दैट इन एड्स पेशेंट व्हाट हैपन इज दैट कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसे लोगों को नजला वगैरह जो भी मैंने अभी कुछ नाम लिया ना, नोज, थ्रोट में सबका इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि पता है अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो हम डेली बीमार पड़ सकते हैं। समझ रहे हो ना? क्यों हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि अपने पास इम्यून सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक एवरेज वे में, एटलीस्ट एवरेज तो है कि ये सब नॉर्मल इन्फेक्शन होने से रोक देता है। किसी को जमाने जमाने तक, लॉन्ग टाइम तक नजला वगैरह मतलब कि कोल्ड वगैरह नहीं होती। क्यों नहीं होती? ड्यू टू द स्ट्रांगनेस ऑफ दियर इम्यून सिस्टम। क्लियर है क्या? तो जो एड्स वाले पेशेंट होते हैं इनके पास ये सब सिम्टम ज्यादा होती है, मतलब जिनको हम लोग कपोसी सार्कोमा बोलते हैं। यही क्या करता है, अल्फा इंटरफेरॉन कपोसी सार्कोमा का रिग्रेशन कराता है। रिग्रेशन मतलब इनका धीरे धीरे खात्मा करता है।
उसको बढ़ने से रोकता है। क्या यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नहीं। नहीं सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, इन्फ्लेमेशन किसे बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन basically it is a type of local response in living mammalian tissue. In a living mammalian tissue, or we can say to injury due to any agent, if the body defense reaction in order to eliminate or limit the spread of infection, इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब सिंपल टर्म में फूल जाना। क्लियर है क्या? इट इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं हो पाएगा ना। लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, ड्यू टू एनी एजेंट, and it is the defense, and it is the डिफेंस रिएक्शन। जो भी इन्फेक्शन होता है उनके अगेंस्ट में क्या होता है? एक डिफेंस होता है, डिफेंस वाली रिएक्शन होती है। काहे के लिए? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट the spread of infectious agent, limit the spread of infectious agent। क्लियर? अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या क्या होगी? कुछ सिम्टम्स तो आपको मालूम है, कुछ मैं बता देता हूं। क्लियर है क्या? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय देख, पहला सिम्टम क्या होगा जो आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं? रेडनेस होगा क्या? रेडनेस। हाँ, इसी रेडनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? र्यूबर भी बोलते हैं या एरिथेमा भी बोलते हैं। खैर आपको इसे टर्म से सुनना है, याद रखना कोई उतना खास जरूरी नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू वेसोडाइलेशन। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आर्टरीज का वाइड होना। किसका? ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का डायलेट होना, मतलब डायमीटर बढ़ जाना। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है? हीट। अरे गर्म भी हो जाएगा, और इस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलर। बेसिकली दिस इज ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट प्रोसीड मोर रैपिडली एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि इसे हमें जल्दी खत्म करना होता है ना। समझ रहे हो क्या? मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोसीड मोर रैपिडली, तो हीट तो होएगा। अरे होएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ बोलना सर, होएगा ना? होगा सर। हाँ होगा नहीं होएगा। हाँ आर्यन, अगला है स्वेलिंग। अरे फूल जाते हैं क्या? उस दिन मैंने दिखाया था ना, आज नहीं है, खत्म हो गया। आप लोगों में तो किसी के पास है? अरे बॉडी में सब छोटी छोटी मतलब सूजन, मतलब कि सूजन नहीं, थोड़ा सा सूजन नहीं, मतलब मैं सूजन बोल रहा हूँ, फूल जाना, समझे? तो कभी कभी सब रिएक्शन होता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्वेलिंग बोलते हैं। और इसको ट्यूमर नाम दे सकते हैं, ट्यूमर टाइप, या ओएडोमा बोलते हैं, इडोमा बोलते हैं, इडेमा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। मतलब म्यूट किया था, आवाज आ रही है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नहीं सर, उसका नेट अभी थोड़ा लैग हो गया लगता है, वो टिक गई है। अच्छा,
तो मैंने क्या बोला, स्वेलिंग, इसको हम लोग ट्यूमर बोल सकते हैं या इडोमा बोल सकते हैं। बेसिकली दिस इज ड्यू टू, ऐसा पता क्यों होता है कि ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी, ड्यू टू increased permeability of blood vessels। क्लियर है? हाँ जी, बात समझ में आ रही है क्या? इंक्रीज परमिएबिलिटी समझा था एक बार। हमने पढ़ा था कि जब ऐसा कुछ रिएक्शन होता है तो उसके जो सेल्स का जो मेम्ब्रेन वगैरह होती है, इनके अंदर की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो हाँ क्या? सर। या फिर जो भी सेल उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिनकी वजह से जो उसके अंदर का जो वहाँ का जो एक्वस कंपार्टमेंट, वो तो अंदर आएगा, वो तो अंदर आएगा तो हाँ। खुलेगा ना। हम्म, तो पास तो जब ही होगा ना जब वो परमेबल होगा। अरे पास तो जब होगा ना जब वो परमेबल होगा। बात समझ रहे हो क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। हम्म, आगे बढ़ूं क्या? नहीं सर, एक मिनट। चौथा पॉइंट लिखिए, पेन, दर्द। बोलते ना, चोट लगी तुझे, दर्द तो तुम्हें को होगा, मुझे क्यों होगा? हाँ जी, जल्दी करो। हो गया सर। फोर्थ पॉइंट लिखेगा, पेन। अरे दर्द भी होगा क्या? दर्द होगा कि नहीं बताओ? इसी दर्द को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। बोलते हैं ना, डॉलर है, डॉलर है। क्या बोलते हैं? डॉलर। वो वाला डॉलर नहीं, यूएस डॉलर वाला नहीं, करेंसी वाला डॉलर है, ठीक है ना? ये डॉलर है, ठीक है? समझ रहे हो क्या? दिस इज ड्यू टू रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी ऑफ द सेल। चाहे तो न्यूरॉन्स में भी हो सकता है इंजरी, and there are chemicals which are secreted, chemicals secreted or released by damaged cell। वही तो दर्द देता है यार, डैमेज्ड सेल्स। और ये केमिकल का एग्जांपल मैंने ग्रुप में शेयर किया था, क्या नाम है उसका? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन। याद है क्या? यस सर। ये कौन सेक्रेट करता है? अरे कौन सेक्रेट करता है? मैं? हाइपोथैलेमस। मतलब वो बड़ा वाला उनमें तो तो इंजर्ड टिश्यू है तो वो करेगा ना। डैमेज करेगा ना, डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू का। हाँ, is a prostaglandin group of lipids made at site of tissue damage or infection that are involved in dealing with injury and illness. They control the process such as inflammation, blood flow, formation of blood clots, and the induction of labor. क्यों नहीं पढ़ते जो ग्रुप में शेयर किया जाता है? तो लर्न नहीं पढ़ा था। होता है, बस ऐसा पढ़ते हैं। लर्न तो मैंने कौन सा लर्न कर रखा है? मैंने भी प्रोस्टाग्लैंडिन याद था तो कहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन तो लास्ट लेक्चर में अपने को, लास्ट के लास्ट वाले। पढ़ा सबने? तो बट वो याद नहीं है।
याद याद होना चाहिए ना। बोलता है ना, एक बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है, देखते रहो। तुम लोग कुछ और चीज देखते हो ना, जो देखना चाहिए वो देखते ही नहीं, समझे ना। इसलिए बोलता हूँ ना, जो देखना चाहिए वही देखो, आलतू फालतू चीज नहीं देखते। अच्छा सा और एक बड़ा सा टॉपिक लिखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या लिखिएगा? इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था? इननेट था। अब ये वाला क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या मतलब इसका? व्हाट डू मीन बाय दिस, एनीवन? ये विद लाइफ टाइम हमारे आफ्टर अंदर बर्थ डेवलप वाला। होता है। मतलब हम लोग उसको एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग? एक्वायर करते हैं। जैसे बॉडी छोटी डोले छोले बनाते हैं ना, वैसे ये भी हम अपने लाइफ टाइम में क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। हाँ आर्यन, बेसिकली these are the acquired immunity, these are pathogen specific, क्लियर है? एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, मतलब ये अपनी याददाश्त के बेसिस पे काम करेगा। मान लो एक वायरस है अपने पास आर, ठीक है, दूसरा वायरस है अपने पास क्या? टी। मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? वायरस है। अब ये फर्स्ट टाइम इस पे अटैक किया तो ये अपने डिजीज कंडीशन से हेल्दी तो हो गया, पर लेकिन जो ये इनकाउंटर किया था, इसके अंदर एक मेमोरी रह गई सेल के पास, छोटी सी मेमोरी, कि हाँ ऐसा कुछ आया था, याद अपने को हमला किया था, हम बीमार हुए थे, फिर ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरीके से फिर फर्दर कोई ऐसे ही दूसरा आर की दूसरा स्पीशीज आएगा इनको उसको अटैक करने के लिए, फिर इसका जो इंटेंसिटी है मेमोरी का वो और बढ़ जाएगा। तो एक टाइम होते होते ये आएगा ना कि जो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा स्पीशीज वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये इनका जो अटैक करने का जो तरीका है ना, इनके जो अटैक करने का तरीका है वो सारा का सारा मेमोरी सेल्स के पास रहती है। अपने पास देयर आर सम सेल्स व्हिच आर नोन एज मेमोरी सेल्स व्हिच कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर्स, प्रीवियस वार्स, जो पहले ऐसा हो चुका है। इसी वजह से जब कोई बीमारी एक बार हो चुकी होती है वो बार बार नहीं होती है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। समझ Yes, में आ sir. रही है? तो मैंने क्या बोला कि दीज आर, मतलब इसको लाइफ टाइम में हम लोग एक्वायर करते हैं, क्लियर है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी that is pathogen specific, it is pathogen specific, क्लियर है? characterized by memory, characterized by memory, क्लियर है क्या? क्या मतलब कि
कुछ मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ कि आप इसको याद रख सकते हो, मैं आगे एक्सप्लेन ना करूँ, मतलब ना लिखाऊं, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या आपको याद रहेगा तो मुझे बताइएगा। इट मीन्स that our body when it is getting encountering of a pathogen, when we can say getting encounters from a pathogen for the first time, it produces some response, और इसी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। जब पहली बार कोई आर स्पेसीज हमने अपन को अटैक किया तो उसके रिस्पॉन्स में हमने हमने रिस्पॉन्स दिखाया, उसको मैंने क्या बोला, पहला जो रिस्पॉन्स उस खास स्पेसीज के लिए क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। हाँ, अदर पैथोजन का कोई प्राइमरी रिस्पॉन्स कुछ और होगा, लेकिन मैंने बोला क्या कि दीज आर पैथोजन स्पेसिफिक, तो हर पैथोजन का अपना पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स भी होगा, आगे ना। जो पहला रिस्पॉन्स होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। जो हमने मान लो मेरे पास कोई वायरस आया, कोई पैथोजन आया, अपने को अटैक किया, तो हम जो फर्स्ट टाइम दिखाएंगे ना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, इनकी इंटेंसिटी लो होती है, इसलिए चांसेस होता है कि हम बीमार पड़ जाएं। क्लियर है? पहले इनकाउंटर में चांस होता है कि हम बीमार पड़ जाएं, पर कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पड़ते। अगर वही सेम वायरस बार बार अटैक करता है तो जो अपने अंदर की जो रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी वो बढ़ती जाती है, तो कभी प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, देन फिर वो कभी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, देन फिर टर्शियरी रिस्पॉन्स होगा, और उसके बाद जरूरत पड़ती ही नहीं, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो बीमारी आती ही नहीं आती। अगर वायरस आती भी है तो वापस चली जाती है, बोलता है ये जगह मेरे लिए नहीं है। समझ रहे हो ना? तो रिस्पॉन्स अपने बॉडी में तैयार होती है, दीज रिस्पॉन्सेस आर गेटिंग रिकॉर्डेड इन द मेमोरी सेल। क्लियर है क्या? So the subsequent encounter with same pathogen elicits a highly intensified, or we can say highly intensified secondary or amnestic response. Secondary or amnestic response. So basically, this is the describe that our body appears to have memory for the first counter, and this phenomena acts like that. कुछ समझ में आया? हाँ, जो पहली बार अटैक किया उसके रिस्पॉन्स में उसके लिए हमने एक रिस्पॉन्स दिया, उसको मैंने क्या बोला, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और इसी का रिकॉर्ड अपने जो मेमोरी सेल्स हैं वो रख लेते हैं, मतलब स्टोर हो जाती है इसी के बेसिस पे। जैसे मान लो अगर सेम चीज आया तो या सेल को, क्योंकि उनका केमिकल से मालूम चल चुका होता है कि कौन सा आ रहा है, फिर वो तुरंत अपने सारे सेल को मैसेज भेजता है और बोलता है कि अपनी आर्मी तैयार कर, वार में जाना है, तो इसको तुरंत डिस्ट्रॉय करता है। तो सेकेंडली जो सेकेंड रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा और हाईली इंटेंसिफाइड होगा। क्लियर है क्या? ये मुझे लिखाने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा? हो जाएगा। समझा। क्लियर टू एवरीवन? पहले वाला लो इंटेंसिटी होगा, दूसरा वाला और थोड़ा एलिसिट हाई इंटेंसिटी होगा, एंड इस तरीके से जब इनकाउंटर होते रहेंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। अब एक बार काफी है, दो बार काफी है, एक बार के अलावा दूसरी बार काफी है, तीसरी बार तो नौबत ही नहीं आती। ठीक है ना? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिएगा इसी के अंदर फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला फीचर्स लिखिएगा स्पेसिफिक होता है ना, स्पेसिफिसिटी। क्लियर है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी is specific for specific microorganism, for specific microbes. क्लियर? दूसरा डाइवर्सिटी। क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय दिस? एनीवन?
What do you mean by diversity? मतलब अलग- वाइड हाँ बोलो बोलो. They can recognize vast variety of वास्ट microorganisms. वैरायटी ऑफ Clear है? पैथोजेंस को हाँ सर. Recognize vast variety of microorganism. Clear? Yes or no? इनके Yes, sir. पास एक पावर होती है डिस्क्रिमिनेशन की. काहे का डिस्क्रिमिनेशन? हेलो, सर वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सेल्फ और नॉन सेल्फ का. अपने सेल्फ तुम लोग को पता तो है यार. कहाँ से पढ़ लिया? एसआईटी पढ़ के आते हैं ना. पढ़ के आते हैं सर. गुड. सिर्फ 3 ही बच्चे हैं. तो क्या बोला मैंने? इट कैन रिकॉग्नाइज द सेल्फ सेल ऑफ बॉडी टिश्यू एंड द नॉन सेल्फ. क्लियर है क्या? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब यह हुआ कि इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ. सेल्फ का मतलब क्या होता है? बॉडी cells. और टिश्यू. बॉडी और ये टिश्यू नहीं है, टिश्यू है. क्लियर है क्या? सेल्फ, बॉडी और टिश्यू एंड नॉन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब फॉरेन टिश्यू. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देम. एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देम. कभी कभी क्या होता है, सुसाइडल बैग काम आ जाता है. याद है? जो खुद के ही और पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं. क्लियर है क्या? एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देम. क्लियर है? 4th पॉइंट लिखिए, मेमोरी. 4th पॉइंट लिखिए, मेमोरी. मेमोरी. मेमोरी होता है, मेमोरी होता है. सर कैसे बोल सकते हैं? मेमोरी. मेमोरी. ये भी ना, मैं बोले ना मैडम, मेमोरी. क्या बोली? मेमोरी ना, मेमोरी. अरे तो मेमोरी ग्लैंड होता है. सर आप मेमोरी मत बोलो, वो मेमोरी होता है. फ्री हो जाता है. अच्छा मेमोरी. फ्री होता है. अच्छा मेमोरी ठीक है, हटाओ. Yes, जो बोला वही ठीक है. आगे बढ़ो क्या? पास हो गया. नहीं सर, लास्ट पॉइंट. फास्ट लिखिए मैडम जी. अच्छा राइटिंग के साथ फास्ट लिखिए. मैं कितना फास्ट लिखता हूँ? सर बड़ा हैंड राइटिंग देखते हो क्या फिर उसमें? क्यों राइटिंग राइटिंग खराब है? नहीं सर, अच्छी है. तुमसे तो अच्छा ही है. लिखा क्या? हाँ सर. मेरे 11th क्लास की राइटिंग देखो कितना मस्त होता है. देखा क्या तुम लोगों ने? लिखिए मेमोरी. क्या लिखिए? मेमोरी. बेसिकली मेमोरी में हम लोग क्या बात करेंगे? व्हेन पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी, द बॉडी टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू दिस. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं. जो वहां पे छूटा था, जो मैंने वहां पे स्किप किया था, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ. व्हेन अ पैथोजन enters inside the body, enter inside the body. समझने के लिए
ये क्या है? P4 पैथोजन। अरे हाँ कि ना? अरे हेलो, हाँ हाँ सर। सर। जब ये अंदर आ जाएगा, दिस बिकम्स इनसाइड, देन एक रिस्पॉन्स शो करेगा। क्या करेगा? ये एक रिस्पॉन्स शो करेगा, और उस रिस्पॉन्स को पहचानने, मैंने क्या बोला? व्हेन अ पैथोजन, अरे यार ये क्या हो गया? व्हेन अ पैथोजन enter inside the body, it takes, यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बॉडी टेक्स ना longer time to recognize and respond, पहचानने में और रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगाता है। क्लियर है क्या? क्लियर? हाँ सर। इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा रिस्पॉन्स? प्राइमरी Prime- रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स। और कौन सा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, यस सर। primary immune response. Are you getting my point? What happened? Is there any issue? नो सर। लगता है यूपी जाना पड़ेगा, पक्का जाना पड़ेगा। कौन कौन साथ में चलेगा बताओ? कौन कौन साथ में चलेगा? चलो सब चलो। सर आप जाके आओ सर। मैं तो तुम लोगों को लेके जाऊंगा ना। चलो कोई नहीं। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू इट, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियर है? बट होता क्या है, इसका मेमोरी रख ली जाती है, बट द मेमोरी of this encounter remain in the immune system. बोल कैसे रही थी? आप चले जाओ। सर घूम के आओ, मतलब और कुछ नहीं। घूमने के लिए बोला है, घूमने के लिए टाइम कहाँ है मेरे पास? तो कुछ समझ में आया कि इस इनकाउंटर, इस हमले का वो मेमोरी अपने पास रख लेता है। क्लियर है क्या? यस सर। Should I move to next? एक मिनट सर। हाँ सर। सॉरी सर, मेरा नहीं हुआ सर। नेक्स्ट लिखिए, when similar pathogen enters second time inside the body, हाँ सर। when similar pathogen enters the body, similar pathogen enters the body,
second time inside the body body immune system recognize rapidly उस पैथोजन को ये जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड रिस्पॉन्ड क्विकली और इसी को क्या बोलते हैं सेकेंडरी या फिर एमनेस्टिक Anamnestic response. ओके एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स क्लियर है क्या एंड दिस इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द सिस्टम ये मैंने कहीं और भी लिखाया था ना एनामिनेस्टिक इससे पहले नहीं, अरे लिखाया तो कहीं था कहाँ लिखाया था एम्ब्रियोसेंटोसिस था। अरे नहीं ना अभी जैसे लिखा आई थिंक मैंने लिखा है ब्रैकेट में क्या लिखा था मैंने वहां पे ना अगर पहले क्या लिखा तो स्पेलिंग चेक कर लेना ठीक है ना इतना समझ में आया क्या आप लोगों को एमनेस्टिक मतलब सेकेंडरी होता है क्या? हाँ मतलब ये को पहला रिस्पॉन्स के बाद जो दूसरा रिस्पॉन्स क्योंकि अपने कुछ बॉडी का भी हेल्प ले लिया है इसने ना मेमोरी का इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग एनामिनेस्टिक बोलते हैं क्लियर हाँ आगे बढ़ूं क्या हाँ सर हो गया। उसको ऐसा बोल सकते हैं सेकेंड और सब्सिक्वेंट इनकाउंटर और वी कैन से रिव्यूड रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इसलिए बोलते हैं एनामिनेस्टिक क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है ना बहुत फास्ट क्योंकि अगर पहला रिस्पॉन्स है तो इट विल टेक टाइम अगर सेकंड टाइम है तो ये बहुत कम टाइम में बहुत सारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगा और उसको रिस्टोर कर देगा क्लियर है इसीलिए इसके लिए हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ग्राफ ठीक है ना ग्राफ का मतलब क्या होता है ग्राफ ना अरे हेलो हाँ ये रहा आपका ग्राफ क्या रहा ये आपका ग्राफ इधर लिखना है नीचे में लिखना है आपको टाइम पीरियड नीचे में क्या लिखना है टाइम पीरियड ये मैंने जगह रखा है क्योंकि उसमें कुछ लिखना है हमें ऊपर इधर क्या लिखना है आपको एंटीबॉडी कंसंट्रेशन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन ब्लड क्लियर है अगर मैं ये वाला ऐसा ले रहा हूं कैसा ले रहा हूं जैसे मान लो अपने पास कहाँ से लगे ये अपने पास क्या दिया पहला रिस्पॉन्स हो गया ना जब सेकेंड टाइम आएगा तो उसको ये नीचे वाला पूरा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ये ऑलरेडी जो किया हुआ मेमोरी है इसके बेस्ड पर ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा क्लियर है क्या हाँ जी अगर मैं दूसरा ले लूं ये एक एंटीजन का है पहली बार और दूसरी बार
अब इधर मैं बना रहा हूं, क्लियर है क्या? तो ये वाला आपके पास क्या हो गया? तो स्टार्टिंग में गैप क्यों छोड़ रहे हैं? बता रहा हूं मैं, इट विल टेक सम टाइम टू शो रिस्पॉन्स। वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है क्या पहला वाला? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि देख, अच्छा मैंने कलर अलग अलग कर दिया क्या यहाँ पे? इसको भी रेड कर लीजिए। ठीक है ना? तो रेड वाला क्या है, मैं कैसे लिखूं इसमें? दिस इज द फर्स्ट टाइम इनकाउंटर, फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ए एंटीजन। का नाम मैंने क्या दिया? ए एंटीजन, मतलब ये कोई ए नाम दिया मैंने, ठीक है? क्लियर? हेलो? Yes, sir. देखो मैं टाइम को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रहे, इधर टाइम का ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। अब ये वाला जो आपके पास है ना, इसको मैं कौन सा कलर दूं ताकि आपको ये फर्स्ट टाइम में आया तो आपको क्या दिखाएगा? तो इनकी वजह से ऊपर में क्या मिला आपको? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा क्या? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत? हेलो? ये वाला पार्ट, जो पहला वाला पार्ट है, क्लियर? यस सर। मतलब अगर आप थोड़ा इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इसको और थोड़ा अच्छे से इंडिकेट कर दूं आपका। हाँ, यहाँ पे कौन सा था कलर, कौन सा? ब्लैक था ना? तो कोई भी यूज करो। वो भी यूज कर लूँ? ठीक है ना? तो ये आपका पहला क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्स है, दिस वन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। जो ये सेकेंड टाइम उसी एंटीजन का है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सेकेंड कॉन्टेक्ट ऑफ ए एंटीजन। मतलब वही एंटीजन है, वही वायरस है, वही माइक्रोब्स है, दोबारा इनकाउंटर किया है, दोबारा अटैक किया है। तो इसका रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी जो मेमोरी था ना, मेमोरी प्लस था, उसके जो उस टाइम का फर्स्ट रिस्पॉन्स होगा, दैट विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कुछ समझ में आया क्या? Yes, sir. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कोई दिक्कत? दिस शुड बी मोर और लेस? Secondary immune should be more. हाँ, मोर रैपिड होगा और एंड इट शुड बी इंटेंस। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? अब ये वाला कौन सा है? फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ए वाला या फिर कोई दूसरा होगा? दूसरा। दूसरा, तभी तो इसका प्राइमरी रिस्पॉन्स के तरह ग्राफ है। ऑफ कोई बी वायरस है, कोई बी माइक्रोब्स है। क्लियर है क्या? एंड दिस विल बी द प्राइमरी
इम्यून रिस्पॉन्स। सबने लिखा क्या इसको? एक मिनट दूसरा स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना। तो हमारा बना के इसका स्क्रीनशॉट भेजो। सो वाई एक्सिस में क्या एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन। हाँ हाँ, एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन इन, ये भी कंप्लीट कर लो कि इन ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड में ही होगा ना। हेलो, यस सर। इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। तो सूजल भेज देगा। भेज दिया। तो मैंने बोला वो भेज देगा। एक जन ही चाहिए, एक जन से चाहिए ना आपको। फोटो हटा के भेजो, फोटो को मिनिमाइज कर। मिला क्या आपको? हम्म, हम्म, आगे बढ़ूं क्या? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट लिखिएगा जो मैंने बात किया आपके पास प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस के बारे में। बेसिकली these are carried out, these are done by with the help of two special type of cell जिनका नाम क्या है? lymphocytes। क्लियर है? हाँ सर। The primary and secondary immune response, immune response are carried with the help of two special types of lymphocytes। lymphocytes क्लियर? सर उसका नाम क्या है?
बताइए क्या का नाम होना चाहिए B Your lymphocytes T and T lymphocytes. lymphocytes. in our blood. That is the first one, or we can say एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिख लीजिए आई दे करके, दैट इज बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. क्लियर? टी लिम्फोसाइट्स. क्लियर है? Yes, sir. दिस बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि दे इट विल प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन. क्लियर है क्या? प्रोड्यूस एन आर्मी protein in response to pathogen. Clear? Hello? Yes, sir. In response to pathogen. Clear है क्या? In our blood to fight, बोलिए, to fight with them. Antigens. वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट जो आपके पास टी लिम्फोसाइट्स है, इनका काम क्या होता है? और पता है इसी क्या बोलते हैं, इसी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं. क्लियर है? कॉल्ड एंटीबॉडी. अपने बॉडी के लिए एंटीबॉडी नहीं, उस पैथोजन के लिए क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी. क्लियर है क्या? हेलो? Yes, sir. ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये डायरेक्टली कुछ खुद ब खुद रिलीज नहीं करता है, बल्कि ये बी सेल्स को हेल्प करता है और उसको क्या प्रोड्यूस करे? वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे. क्लियर है? दीज टी सेल्स themselves do not secrete antibodies. क्लियर है क्या? but help B cells to produce the antibodies. क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ, sir. Is there any doubt? No, sir, समझा. Should I move to next? नहीं सर, एक मिनट. जिनका हो गया वो लिखिए. नेक्स्ट टॉपिक डाल के, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. हो गया? सर एक मिनट. हाँ सर. हो गया सर.
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं? कौन मुझे बताएगा? बोलिए। सर एक्टिव मतलब जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीजेंस के अगेंस्ट, और पैसिव बोल सकते हैं कि बाहर से दिया जा रहा है एंटीबॉडीज शॉर्ट टर्म। तो व्हेन host is exposed to antigens, और यहाँ पर एंटीजन का मतलब क्या है? पैथोजन, ठीक है ना? हेलो? Yes, sir. Maybe in the form of living or dead. Living or dead microbes. It may be other protein. Clear? Other proteins. They produces antibodies. Clear? They produces antibodies. क्लियर है? दे मतलब होस्ट ना? हाँ जी, हाँ सर। दे का मतलब होस्ट ना? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। क्या ज्यादा लेता है? टाइम ज्यादा लेता है। कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, इसको ऐसा AI लिख सकता हूँ क्या? चलो मैं पूरा लिखता हूँ। एक्टिव immunity is slow, clear, and it will take time to give full effectiveness. Clear है? Takes time to give its full effectiveness. क्लियर है क्या? कुछ बात समझ में आई तो लोगों को क्या? यस सर। मतलब जैसे पैथोजन एंटर करता है तो ये इम्यूनिटी मिलेगी ना उसको। सिंपल मैं मैक्स में कर रहा हूँ। मान लो ये पैथोजन है जिसको हमने क्या बोला? एंटीजन। क्या बोला हमने? एंटीजन। मान लो मुंह के थ्रू मेरे अंदर बॉडी के अंदर चला गया। कहाँ चला गया? मेरे बॉडी के अंदर चला गया। इनके जाने से अपने बॉडी में, अच्छा इसको, ये जो आपके पास ये जो पैथोजन है, इट मे बी डेड और इट मे बी लिविंग और इट मे बी एनी प्रोटीन। क्लियर है क्या? हाँ सर। किसी भी तरीके से अपने अंदर चला गया तो इसके रिस्पॉन्स में अपने बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, तो ऐसे ही इम्यूनिटी को, जहां पर ऐसे फॉरेन एंटीजन के केस में ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इसी टाइप ऑफ इम्यूनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव। जो मतलब बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है।
हाँ Clear सर है? समझ लो। हाँ इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे कि हम आगे बढ़ो, क्या मैं एक्टिव इम्यूनिटी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ूं? हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। इसमें एग्जाम्पल देके लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स। क्लियर है? ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन, deliberately during immunization, or we can say the infectious organism. What I said, infectious organisms which gaining access into body during natural infection, during natural infection, it induces active immunity. Clear है? Active immunity. Any problem? सर Injecting of microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection, this will induces active immunity. Clear है? इसी का सेकंड पोर्शन लिखिएगा पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। कौन सा? पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है? आप लोगों को मुझे आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग क्लास में हो क्या? हाँ सर समझ हाँ लो। बस 2 बच्चे क्लास में, और सब? है सर। नहीं, 2 बच्चे क्लास में नहीं है। सर, रितिका डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, तनुश्री? सर वो भी शायद से। तनुश्री पहले ही हो गई थी डिस्कनेक्ट। हाँ, मैंने क्या बोला? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? जब हम लोग, अच्छा क्या पैसिव में क्या होना चाहिए बताइए आप लोग, अकॉर्डिंग टू व्हाट इट शुड बी? सर जो बाहर से करता है। रेडीमेड एंटीबॉडीज लेंगे। क्लियर? सो व्हेन रेडीमेड, जैसे रेडीमेड क्लॉथ होता है ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज are directly given to protect the body against foreign agents is called so. Clear है? That is the passive immunity. अच्छा मुझे ये बताइए, जो कोलेस्ट्रम में मिलता है वो किस में आएगा? पासिव। पैसिव। पैसिव नेचुरल, ठीक है ना? अच्छा, जो फीटस के थ्रू मिलता है, मतलब जो किससे मिलता है? प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा। यस सर, पैसिव। पक्का ना? सीवी। That's why mother's milk
is considered very very essential for the newborn infants, और इसलिए बोला जाता है कि till 6 month बच्चे को किसी बाहर का खाना तो खैर खाता ही नहीं है, मिल्क नहीं पिलाना चाहिए। क्लियर है? इन सीवियर केस कि the mother is not able to produce milk, then in that case that baby should get milk from other, but it should be, if it is available then it should be from his or her own mother। क्लियर है? तो write down its example। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? मदर्स मिल्क फॉर न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न इन्फेंट। क्लियर है क्या? द येलोइश फ्लूइड, क्या बोला मैंने? येलोइश फ्लूइड, क्या बोलते हैं उसको? कोलोस्ट्रम बोलते हैं क्या? secreted by mother। क्लियर है क्या? ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन which has abundant antibodies। क्लियर है? IgA याद रहेगा? आपने बताया था ना। आपको बताया। मम्मी। और मम्मा ही दूध पिलाती है, इसलिए IgA आएगा। ठीक है ना? हेलो सर। जी मैडम, किधर गई थी आप? सर वो मेरा नेट इश्यू हो रहा है, तो आप पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना, जहाँ पे वो एक्टिव इम्यूनिटी लिखवाया था आपने। यही? उसके पहले कुछ लिखवाया आपने? हाँ सर, इसके बाद वाला। यस सर, हो गया। Next we have this one, the yellowish fluid that we call as colostrum, secreted by mother in the initial days of milk। ये परमानेंट मिल्क में नहीं आएगा, इनिशियल डेज ऑफ मिल्क में आएगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? IgA बोलते हैं। क्लियर है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखिए, ये जो आपके पास क्या है, फीटस है, दे ऑल्सो रिसीव fetus receives some antibodies through placenta। yes or no? Antibodies through placenta from their mother। okay, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? fetus receive some antibodies from their mother, और वहां से कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है? IgG कैसे याद रखने का तरीका बताया था? ड्यूरिंग गर्ल ही प्रेग्नेंट होती है। ओके, आगे ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर क्या होता है? IgG। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अरे क्लियर है क्या? यस सर। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? सर एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले। लिख ले, स्क्रीनशॉट नहीं। सर पिछला वाला पे नहीं हुआ था, दोनों साथ में तो लिख उतना लो। पेज छोड़ देना फिर। हाँ सर, इसके तो स्क्रीनशॉट तो लेके रखना पड़ेगा। तो इसका अच्छा तो ये लिख लो पहले। हाँ, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, कितना लगेगा उसके लिए। जिनका हो गया वो लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जिनका हो गया वो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या लिखना है? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हो गया?
एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। लिख लिया तूने क्या? हाँ सर। लिखा क्या? हो गया। नेक्स्ट लिखिए डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है क्या? एक तरफ लिखिए एक्टिव इम्यूनिटी, नेक्स्ट लिखिए पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस एक्टिवली, produced actively by the immune system, by the immune system of host. Clear? Second point लिखिए received passively, received passively by the host and the host immune system, immune does not participate. क्लियर है क्या? इनएक्टिव द होस्ट बॉडी पार्टिसिपेट, इसमें उसके बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करती। क्लियर है क्या? हेलो, अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। पार्टिसिपेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा induced by infection or by contact with the immunogen, for example vaccine। induced by infection or by contacts with a immunogen। और इम्यूनोजन का एक एग्जांपल दीजिएगा अभी। वैक्सीन। क्लियर? वैक्सीन को क्या बोलते हैं?
इम्यूनोजेंस बोलते हैं। क्लियर है क्या? विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, यस और नो? एंड दीज आर कन्फर्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज, यस और नो? इंट्रोडक्शन ऑफ Yes, sir. रेडीमेड एंटीबॉडीज। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल होते हैं और इफेक्टिव होते हैं। अरे हाँ कि ना? इम्यून हाँ सर। रिस्पॉन्स लॉन्ग लास्टिंग होगा, ड्यूरेबल एंड इफेक्टिव। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसमें जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स ये कम टाइम के लिए होती है। यहां पर मैंने कुछ गलत लिखा क्या? इन इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है क्या? हाँ रिस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड and less effective and less effective। यहां तक कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। should I move to next? सर एक मिनट। सर 1 मिनट। तनुश्री किधर है? रितिका किधर है वो? तो नहीं है ना मीट में वो? ज्वाइन किया ही नहीं उसने। किया था उसने। फिर क्या हो गया? कॉल करते से लिख के। होस्ट इम्यून सिस्टम डू नॉट पार्टिसिपेट कैसे लिखा है? पैसिव इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट। क्या हुआ? पैसिव इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट। Received passively by the host and host immune system do not participate। अच्छा, वो स्पेलिंग की बात कर रहे हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट मतलब कैसे है? बता रहा हूँ ना। अरे वो पार्टिसिपेट का मतलब वो खुद बनाता है ना, वो कुछ बना ही नहीं रहा, इसलिए बोल रहा हूँ डू नॉट पार्टिसिपेट। पर वो हाँ ठीक है, बस वो होस्ट का इम्यून सिस्टम का पार्ट रहेगा ना, लेकिन कैसे जो उसको पार्ट मिल रहेगा? अरे उसका इम्यून सिस्टम बना बना कहाँ रहा है? ये तो एंटीबॉडी जब बनाना तब ना उसका पार्ट हो, तो बना कहाँ है? हम तो बाहर से ऑलरेडी दे रहे हैं उसको, समझ रहे तो हो? वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे फिर। नहीं, वो तो जो आपका बॉडी में तो रहेगी। मैंने बोला होस्ट के बॉडी में तो रहेगा, पर उसके इम्यून सिस्टम इसको नहीं बनाएगा ना, इसलिए लिखा है कि इट विल नॉट पार्टिसिपेट। हाँ क्लियर? समझा। पार्टिसिपेट। Should I move to next? अरे हो गया? यस सर। सर नहीं उठा रही है वो। सोने दो बच्चे को। आगे बढ़ा क्या? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट से पहले
इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि इन पे द इम्यूनिटी डेवलप इन द एक्टिव इम्यूनिटी. व्हाट आई सेड, द इम्यूनिटी डेवलप इन द एक्टिव इम्यूनिटी, इट विल डेवलप आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इनके पास क्या होगा, लैग पीरियड होगा. क्या होगा, इनके पास लैग पीरियड होगा. बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ये क्या होगा, शॉर्ट लिव तो होती है लेकिन ये इमीडिएटली इफेक्टिव होती है. क्लियर है क्या? जो रेडीमेड व्हाट वी टेक द रेडीमेड एंटीबॉडीज, दैट इज द इमीडिएट एक्शन शो करेगा. और जो ये वाला है ये स्लो तो होगा लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपना एक्शन शो करेगा. क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ, इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी develops only after a lag period. कोई दिक्कत है क्या? तो शक्ल क्यों बन रहा है तेरा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? समझो सर. शक्ल मत बनाया करो ना. तो तनुश्री अभी नहीं आएगी, वही बस. जो नहीं आएगी इसलिए तुम्हारा शक्ल बन रहा है. तो मैं बस पढ़ रही थी वो मैसेज, वो क्या लिख रही थी. अच्छी दोस्ती है, बोलते ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. आगे बोलना है सुशल. इम्यूनिटी डेवलप्स ओनली आफ्टर अ लैग पीरियड. क्लियर है क्या? इसमें क्या है कि इम्यूनिटी इज इफेक्टिव, इम्यूनिटी इफेक्टिव इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली. कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है सर. इनके पास मेमोरी रहेगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, मेमोरी प्रेजेंट. क्लियर है? इनके पास कोई मेमोरी क्योंकि अपने बॉडी में बनती ही नहीं है. अरे हाँ कि ना? इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. क्लियर है क्या? It serves no purpose in immunodeficient host. कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जो कि इम्यून तरीके से, जिनका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट है या वीक है, वहां पर इसका कोई रोल नहीं है. वहां पर कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि अपने अपने इम्यून सिस्टम के अंदर से सारे एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप तो हो रही थी ना. मतलब एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप फ्रॉम द होस्ट के इम्यून सिस्टम से. अब जब वही वीक रहेगा, वही नहीं रहेगा, तो कहां से अपना रहेगा, कहां से अपना बनेगा? क्लियर है क्या? सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनोडेफिशिएंट host. Clear? And in this applicable in, obviously ना यार, अब रहे ना रहे इसलिए बोला था ना कि not participate. सुजल क्या बोला था मैंने अभी? It will not participate in that reaction. हाँ कि ना? हाँ. तो जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो अपना एक्शन तब भी शो करेगा चाहे वो रहे या ना रहे. आ रही थी का? Yes. क्या एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंट का मतलब जिनका इम्यून सिस्टम वीक है. क्लियर है? जैसे एड्स वगैरह वाला डेफिशिएंट. एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट. कोई दिक्कत है क्या? No, sir. यूज्ड फॉर prophylaxis, used for
prophylaxis to increase body resistance. Clear है क्या? And in this used for treatment of acute infection. Acute का मतलब क्या होता है, याद है क्या आप लोगों को? शॉर्ट शॉर्ट टर्म वाला. Used for treatment of acute infection. कोई दिक्कत है क्या, बताइए? जो No, कोलेस्ट्रम है वो बेबी में यूज हो सकता है क्या? हाँ जो कोलेस्ट्रम के एंटीबॉडीज वो बेबीज में यूज हो सकता है? हाँ, बेबीज में, इन्फेंट्स में यूज होगा, सोजल में यूज नहीं होगा. It is not possible ना. How it is possible? तो दूध तो कोई भी पी सकता है ना. तो वो मिल्क और इस मिल्क में बहुत फर्क होता है ना. हाँ सर. हाँ कि ना. जो बोलते हैं ना मिल्क पाउडर होते हैं, तो बच्चे को ही अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे नहीं लगेंगे. आप बच्चे बन के खा सकते हो, वो अलग चीज है. कुछ आता है ना नेस्ले का ब्रांड वगैरह है, आप बच्चों की तरह खिलौना लेके खेल सकते हो, वो अलग चीज है. पर बच्चे नहीं बन सकते ना. अरे हाँ कि ना. हाँ. वैसे अगर कौन तुम्हें देगा सब चीज, कहाँ से तुम्हें मिलेगा? नॉट पॉसिबल ना. हाँ. सिर्फ मम्मा से ही मिलती है. ठीक है ना. एट दिस एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. और आप पर इफेक्टिव करेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस टाइम वैसा होता है, इसलिए उनको चाहिए होता है. हाँ, डेवलप करने में. बाद में वो इनिशियल कुछ देर के लिए मिलता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाती है ना, तो उस टाइम वो तुम्हें देगा या उसको देगा? हाँ जी, आगे बढ़ो. मैं आगे बढ़ू. हाँ सर. तो पैसिव में बस वही दो टाइप के है क्या, प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रम? वैक्सीन था ना. अरे हाँ. उसमें नेचुरल भी था ना, एंटी सीरम था नहीं अपने पास क्या? यस सर. अच्छा क्या बोलते हैं, वैक्सीन आप किस में था अभी, किस में बात करें वैक्सीन के बारे में? एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव में आएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट लिखिए इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. इम्यून सिस्टम इन द बॉडी. क्लियर है क्या? इसमें पहला लिखिएगा लिम्फाइड ऑर्गन. लिम्फाइड ऑर्गन्स. क्लियर है? एलर्जी वाला पार्ट बाद में करवाओगे? सब कराएंगे, आप पढ़ते चलिए, सब कराएंगे. ठीक है ना, सब आएगा इसमें. लिम्फाइड ऑर्गन. दूसरा लिखिए लिम्फाइड टिश्यू. लिम्फाइड टिश्यूज. क्लियर? तीसरा लिखिए सेल्स. और सेल्स में कौन आएगा? लिम्फोसाइट. क्लियर है? फोर्थ में लिखिए soluble molecule like antibodies. Soluble molecules like antibodies. क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. As we know that immune system is unique in the sense that it can recognize the self cell and non-self cell.
मतलब कोई भी अगर फॉरेन एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस उनके बॉडी में आएगा तो विल इट बी पॉसिबल कि वो अपने आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा हाँ and हाँ. then it will respond to them according to the situation, according to the memory and Yes. remembers them. ये काम किसका होता है? इम्यून सिस्टम का होता है. T lymphocyte. Lymphocytes. हाँ. And then the immune system also plays an important role in allergic reaction, in a allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. तो इसमें एक स्टार डाल के एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि the immune system क्या बोला मैंने? The immune system also plays an important role and plays an important role in a allergic reaction. क्लियर है? Yes, sir. autoimmune response, autoimmune not response, it is the autoimmune disease. आर्यन क्लास में हो? Who, sir? Who, sir? And organ transplantation, क्योंकि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं होती तो सारा का सबका ऑर्गन एक्सेप्ट कर लेता है ना. इसीलिए जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बहुत सारी चीजों को देखा जाता है Immunosuppressants देते हैं. क्योंकि है तो एक्चुअली वो फॉरेन ऑर्गन, इसलिए टिल देयर लाइफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो करते हैं उनको इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है. अगर नहीं हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देगा. अगर रिजेक्ट, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट किया और किडनी को इसने रिजेक्ट कर दिया तो मान लो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, रितिका मैंने क्या किया, सर्जरी के थ्रू किडनी चेंज कर दिया ना, उसका किडनी खराब हो गया था. ऐसा है नहीं, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, दिल पे मत लेना. तब हुआ क्या कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव हो गया और उस किडनी को रिजेक्ट कर दिया. अफसोस क्या होगा? अल्टीमेटली काम हो जाएगा ना. तो इसलिए उसको क्या है, टिल डेथ उसको इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है. उसमें immunosuppression क्या करता है? इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, मतलब उसको रिजेक्ट. तो उससे प्रॉब्लम है ना, इम्यून सिस्टम को वीक करते जा रहा है ना, मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट्स. वीक नहीं करता उसको, उसके एक्टिव जो रिजेक्ट करने की जो पावर है ना उसको सप्रेस करता है. फिर वो चलता है मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल में उसको लेना पड़ता है, ठीक है ना. तो वहां पर इम्यून सिस्टम, अच्छा इसके भी अलग अलग होता है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, बहुत सारे टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, वो हम लोग अपने रिस्पेक्टिव टाइम से पढ़ेंगे. ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. क्लियर है? तो जो नया ऑर्गन जो डालेंगे उसको ये करेगा, इम्यून सिस्टम अलाउ नहीं करेगा फंक्शन करने. नहीं, देखो एक्चुअली है तो वो फॉरेन पार्ट ना, हाँ. फॉरेन एंटीजन, तो वैसे ये भी फॉरेन पार्ट है, लेकिन बॉडी को जरूरत है, इसलिए पहले सब कुछ मैचिंग की जाती है. टिश्यू मैचिंग होती है, ब्लड ग्रुपिंग होती है, आरएच फैक्टर, सब कुछ को मैच करने के बावजूद भी इम्यूनो सप्रेसेंट लेना इसलिए पड़ता है ताकि उसको वो रिजेक्ट ना करे. ठीक है सर. हाँ. अगर रिजेक्ट कर दिया तो काम ही नहीं करेगा. जब रहेगा ही नहीं, जब फंक्शनल नहीं रहेगा तो फिर उसकी बॉडी डेड है, कोई मतलब ही नहीं बनता. क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर. तो ये आपके पास क्या है, इम्यून सिस्टम का कुछ फंक्शन वगैरह है. क्लियर है क्या? यस सर. एक आपके पास आता है लिम्फोइड ऑर्गन. क्या होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. वेस्टिजियल. हाँ, कुछ बोला? नहीं सर. बोलो क्या बोलो. तो वेस्टिजियल ऑर्गन था ना, लिम्फोइड ऑर्गन, वो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स था ना. स्प्लीन वगैरह ना. स्प्लीन किसने बोला वेस्टिजियल है? सर नहीं, स्प्लीन वर्मिफॉर्म मतलब अपेंडिक्स. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसा बोल रहे थे. हाँ, अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, निक्टिटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल है. नेक्स्ट इसमें लिखिए लिम्फोइड ऑर्गन. लिम्फोइड ऑर्गन. क्लियर?
तो नेक्स्ट टाइम से करवा दो ना। बस एक लाइन की पॉइंट ऐसे मैं करा दे रहा हूँ ठीक है। कि द ऑर्गन्स, ये वो ऑर्गन्स हैं where origin and or maturation and proliferation of lymphocyte occurs, of lymphocytes occur। इसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में अपने पास क्या क्या आता है बताइए? ये समझ में आया ना? ये लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन होते हैं जहां पर ओरिजिन एंड या फिर सिर्फ मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फाइड ऑर्गन। जैसे कि आपके पास लिम्फ नोड आर्मपिट्स में होते हैं, ठीक है, आर्मपिट के मतलब जो बीच में स्पेस होती है वहां पे होती है। थाइमस एक है आपके पास, लिम्फेटिक वेसल है जो कि आपके थाई पोर्शन में मिलते हैं। क्लियर है क्या? समवाट जो नोड्स होते हैं इसके अंदर ये सारा का सारा काम होता है। क्लियर है? तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में आपके पास आता है बोन मैरो, थाइमस, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। क्लियर है क्या? आफ्टर मैच्योरेशन these lymphocyte migrates to secondary lymphoid organ like spleen, lymph node, tonsil, pairs patches of small intestine and appendix। क्लियर है क्या? the secondary, क्या बोला मैंने? secondary lymphoid organ provides the site for interaction of lymphocytes with antigen। मतलब ये वो मैदान है, ये वो फील्ड है जहां पर लड़ाई होती है। समझे क्या? ये वो फील्ड है, ये वो मैदान है जहां पर एक्चुअल में आर्मियों और एंटीजन के बीच में लड़ाई होती है। विच देन प्रोलिफरेट एंड बिकम अफेक्टेड सेल। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है?